Assistant Professor, glad to be a part of such mission, welcomes you all in today's webinar on the topic, the power of emotional interaction. Not taking much of your time, I would like to invite our biggest motivator and inspiration, our principal ma'am, for delivering welcome note. Over to you, ma'am. थैंक यू रुकैया मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करना चाहती हूँ आज के इस वेबिनार पे, जिसका कि टॉपिक है द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। और सबसे पहले इस श्रृंखला में मैं इनवाइट करना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी हमारे मैडम स्पीकर का, चारुल गुप्ता जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे बच्चों को गाइड करने के लिए तैयार हुए। चारुल मैम, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका सेशन में। इसके अलावा मैं रुकैया मैम को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और क्योंकि शी वाज द मेन कनेक्टर who could arrange this beautiful session। और साथ ही में प्रतीक्षा मैडम जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज वो हेल्प करने के लिए भी हमें हैं। आई होप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं। तो बेटा, this particular software solution we have purchased for conducting our webinars, so I hope we all will together make it a success। और इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहती हूँ अपने सभी टीचर्स का, अपने अदर स्टाफ का, जो कि आज प्रेजेंट है हमारे इस वेबिनार में, अपने प्यारे बच्चों का, जो किसी भी कॉलेज की एक्टिविटी में बड़ी ही जोर शोर से भागीदारी करते हैं। और शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है, क्योंकि अगर जो जिनके लिए कोई प्रोग्राम किया जा रहा हो, अगर वो बच्चे खुद इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो फ्रूटफुल हो। नहीं, आप किसी भी, हम आपको लिंक भेज सकते हैं, लेकिन लिंक को क्लिक करना और अंदर आना तो आपके, इट इज योर इनिशिएटिव। साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने मैनेजमेंट का, हमारे स्पेशली हमारे मैनेजर सर सदानंद मोहन सिंह जी का, जो कि हमेशा एक बहुत बड़ा उनका हम पर आशीर्वाद रहता है। और since the inception of this college from 2000, father of Sudharinder Mohan Singh ji, our manager sir, he had been a continuous motivator. He was the person who was behind this whole idea of starting an educational institute for the empowerment and education of women, and that legacy is being carried out very beautifully, very sportingly, and very strongly by our manager sir Sudharinder Mohan Singh ji. I thank him from the deepest core of my heart. And apart from that, those whose names I have taken, and certain other people whose names I have forgot to take, I thank everyone and I welcome everyone who is part of this wonderful session. I hope this, as far as this particular webinar is concerned, emotional intelligence, this is very much relevant as far as these times of COVID-19 is concerned, because see, lot of uncertainty is there, and I understand that since it is every of the student, they were hell bent upon that after their colleges are over, especially the final year students, so they will definitely try for their employment, etc. But this is an uncertainty, this is a situation, unprecedented situation where this uncertainty has arisen. But I'm very sure, Betty, that if you are emotionally strong, if you have that knack that yes, the situations do come, sometimes good, sometimes bad, but we have to fight the odd and we have to emerge as a winner. So, but yes, at the same point of time, I realize you are very small to understand everything. I hope that your parents are continuously doing your counseling, but still there are certain things which we want to hear from an expert. Only then we are ready to, trust that sometimes it do happen। कई बार ऐसा होता है बहुत, लेकिन हम लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है, इट इज वेरी मच ऑब्वियस, क्योंकि वो बचपन से बता रहे होते हैं। बट जब कोई एक्सपर्ट आके हमें बोलता है नहीं नहीं ऐसे करना है, तो वी स्टार्ट जेन्युइनली बिलीविंग या हिम। तो मुझे लगता है आज चारुल गुप्ता मैडम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हमारे बच्चों के साथ, और डेफिनेटली ये सेशन उनके लिए
आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले समय में, महीनों में डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बेटे एक मेरी ज़रूर आपको सजेशन है, हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन कभी-कभी हमारा हम सिर्फ एक लिसन करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर सभी बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस समय, तो ज़रूर बेटा एक कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, और जो आपके जो भी हमारे लर्नर स्पीकर्स यहाँ पे आते हैं, आप उनकी बातें, छोटी-छोटी बातें जब हम लिख लेते हैं, तो शायद हमें कभी-कभी जब हम उनको ऐसे ही बैठे-बैठे कभी देखते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम रिवाइव कर पाते हैं, and that becomes in due course of time, it becomes yours. So please be in a habit of writing some good advices also. So that will become your asset. तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, ऑलरेडी थोड़ा-सा आज हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा नया था, इसलिए थोड़ा एडजस्टमेंट में अभी टाइम लग रहा था। तो मैं फिर से पुनः चारुल गुप्ता मैडम का, स्पीकर मैडम का फिर से मैं वेलकम करती हूँ, एंड I wish all the very best to all the participants, and stay safe, stay blessed, stay healthy. Thank you. Over to Ruqayya ma'am. Ma'am, you're muted. Rukaiya, ma'am, you're muted. Thank you, ma'am, for the beautiful words. I'm not wasting so much time anymore, and we are keen to hear Charu Gupta, ma'am. So over to you, ma'am. You can start your presentation. So thank you, Rukaya ma'am, for giving me the stage, and thank you, Principal ma'am. So she said what I was actually going to ask all of you to do. Please sit with the diary. I mean, उन्होंने मेरे मन की बात पढ़ ली, because you know I can come and I can talk and I can give you knowledge, लेकिन उस पे अमल करना, उसको आत्मसात करना, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना, that is completely your thing. So you really need to do that. So always whenever I start a session, whether an online session or a regular session, I just ask my students to do two things. So the first thing that I'm requesting all of you to do is allow me the permission to enter your mind. Okay, so like ma'am said, first initiative आप लोग ले चुके हैं. You have clicked the link. You are here today to listen to me, and I am very grateful for that. But कई बार क्या होता है? We are there. Mentally, we are not there. And this permission, your principal ma'am cannot give me, Rukaiya ma'am cannot give me. You have to give me. So please give me permission to, enter your minds. And then I always tell my students, a smart student is one who can customize his or her learnings. I'll say 10 things, I'll say 20 things. According to your situation, see what applies to. Maybe two will apply to one person, next two will apply to some other person, and then practice this. Okay, so the first thing is I'm asking you all permission because we are doing it all for you. And the second thing is let's have fun. Let's make it very interactive. So generally what happens is we think that, ma'am is here to teach us. She is going to tell us and we are going to be the listeners. It's a two-way process. एक अच्छे टीचर को एक सीकिंग स्टूडेंट की बहुत जरूरत होती है. A teacher is as good as his or her students. So please मेरा साथ दीजिए. This is not a regular session wherein I can see you. So आपके responses chat box में भेजते रहिए. Let's make the next 1 hour matter in all our lives. शायद जितना मैं आपको सिखा पाऊँ उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों से लेके जाऊंगी. And I'll be able to, use it to help other students of mine. So, shall we begin? So can I see yes on the chat box? Ma'am, chat में there's some issue. So chat as of now आ नहीं रहा है. I just told my internal team as well. Chat was not enabled, ma'am. Yes, ma'am. On behalf of all the students, you can proceed. Okay. Thank you, ma'am. So I hope because we have the issue of chat, but then that's what the topic is, emotional intelligence. So maybe as ma'am said, you have your diaries and other things. Maybe you can start writing those. Because see, आज हम बहुत सारी brain churning करने वाले हैं. हम brainstorming करने वाले हैं. In soft skills, every skill you acquire when you practice it. It's not some lecture which I can tell you, you can write notes and you can memorize and you're like, wow,
हो gaya. It's not a good thing. Okay, it's no magic. It's no magic wand. You need to practice it. So first of all, think about this. Emotions, right? We are starting with emotional intelligence. So the first question is emotions. What do you understand by emotions? For you, what are emotions, right? And then, do you think emotions help you or they negatively impact you? How do you manage your emotions? You control them, you suppress them, or you manage them? So just take a couple of seconds to think about these questions. What do you do with your emotions? And this will somewhere tell us why we are having a talk about emotional intelligence today. So I hope आप लोगों ने सोचा इस बारे में. So let's start. What is an emotion? Basically, what are emotions? So if I say in the plain language, emotion is any satisfied need or unsatisfied need. So no, we want something. We want a dream job. We get that job. We're very happy. Okay. Happiness is an emotion. We don't get a job. We're very depressed. We feel bad about it. Emotion because the need was not met. Now, the point is, can we control the external environment? Can we control the outcome? To a certain extent, we can exert our influence. But then, ultimately, it's all about self-management. It's all about managing ourselves. And that is why today, EI, emotional intelligence, is the most sought after soft skills in the corporates, in other ventures, in organizations and colleges, because people are realizing how important emotional health is. We are doing a lot for our physical health. We want to look good. We wear good clothes. We go to gym and all. Do you take care of your emotions? Are your emotional needs being met? So let's start the session, and I would like to start my presentation and we'll further delve into the topic, and I hope you have a tremendous journey. Let's have an adventure together and understand what emotional intelligence is. Okay? So ma'am, I need your permission to share my, yeah, thank you. So is my screen visible? Yes, Charul ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, so first of all, let's start with certain questions. Questions for reflection. How do you feel? So in your diaries, just write, how are you feeling right now at this very moment? And generally, most of the people, we are in this habit. We won't even think about how we are feeling. Without thinking, we'll just say, I'm fine. Because that is what the society expects from us. That is what everybody has taught us. How are you? Fine, thank you. That is what the reply needs to be. So, next question. Why do you always say we are fine when we are not? I've already answered it. No, societal norms. That's what we have been taught from the beginning. And that is why we don't find it easy to talk about our feelings. Awareness ही नहीं है ना, पता ही नहीं हम कैसा फील कर रहे हैं. Because हम सोच तो रहे ही नहीं अपनी फीलिंग के. हमारे जो सिस्टम में ऑलरेडी stored है that we are fine, we reply with that only. So I do one exercise with my students. Next time somebody asks you, how do you feel? Give a different answer to the person. Okay. So maybe somebody asks you, how are you feeling? You can say, I'm feeling very sunny. What does feeling very sunny mean? It means I'm feeling very happy right now. And this different answer gives the other person also room to think about something new. Okay, I'm feeling very depressed. Maybe you don't want to say depressed. You can say, I'm feeling like a balloon with no air in it. So, I need that air. I need that motivation. So, next time, really, when you ask
maybe with not others, but ask your own selves today. How are you feeling? How are you feeling right now at this very moment? Okay. The next question, what makes it so hard to talk about your feelings? So, one, of course, the fear of being judged. And the most important one, we don't know about ourselves. So, we study our subjects with a lot of enthusiasm, but we never study about ourselves. We don't know what's happening in our system. हमें कोई खुद ही खबर नहीं है तो हम किसी और को क्या बताएंगे? Okay. And the last question, which I hope you can start doing after the session. Can you consciously move from one emotion to another emotion? हमें awareness तो पता चल गई, हमें पता चल गया हमारा mood off है. Can we switch it on? या उसका switch off ही रहेगा? So these are certain questions. Please do think about these questions. Now going to the next slide. Emotional intelligence. So this is what I'm going to try for today. Hello. But this is what emotional intelligence can do for you your entire life. It can calm your storms. And today's forecast, if you want, it can be a lifetime forecast for you. एक मिनट ना, मैं Peace खुद of मेरे mind मोबाइल से and देखती हूँ. happiness. All day long, no matter what. So we are not dependent on our external एक मिनट ना, मैं खुद situations. चेक कर लेती Our हूँ एक बार. external situations are not controlling us. We can take right back our control and manage our emotions. And we can certainly ensure peace of mind and happiness. बहुत बहुत खूबसूरत skill है. Okay? The only need is we need to practice it. And I hope I'm able to, inspire you enough to think about your emotional well-being. That is my motto for today. So going forward, now many students many a times ask us, again, बहुत time से हमारी mind में बहुत सारी चीजें feed की गई हैं. And इतना सारा सामान है, इतना सारा outdated सामान है, जब तक खाली वो नहीं होगा, how would we fill it with new stuff? So the first thing is, हम are very important. And definitely it is. IQ is important. I'm nowhere saying IQ is not important. But then what about EQ? And why is EQ today more important than IQ? So let's see this. Intelligence quotient. So how do we measure our intelligence? By IQ. And we measure our emotional health by emotional quotient. So it says the research has proven that your success in life 80% depends on you and 20% depends on IQ. And see, I mean, kitni irony hai that we all know about IQ and we have no idea about it. I mean, now schools, colleges, corporates are waking up to this important skill, and I have evidence that proves this. So, supposingly, let's take certain examples. आप बहुत intelligent, okay? You have a tremendous IQ. Before the paper, maybe you have a fight with your parents. Mood आपका बहुत off. Okay? And you have no idea about it. You don't know what to do with your emotions. You go very angrily and give the paper. Will you do well in the paper? Even with IQ, you won't do. Now let's come to placements. So ma'am said you will be trying for your placements. Believe me, in my last 8 years of working as HR, of interviewing around 1,000 plus people, I can tell you this. We don't actually see or measure the answers. They can give brilliant answers. We are not concerned with what they answer. We are concerned with how they answer. कैसे आंसर कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उनका कन्विक्शन क्या है, उनकी अपने सब्जेक्ट की जो पकड़ है, क्या वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनके चेहरे पे, वो स्ट्रेस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या वो बहुत नर्वस है इंटरव्यू में, या वो जानता है how to manage his nervousness, how to manage their emotions, and that is where we decide who to select and who not to select. And there's a reason. We see, we have the pandemic. We have so many things going on. Even the corporates, things are changing every second. We want people
who are tough, who can handle those changes, जो छोटी सी बात पे स्ट्रेस में नहीं चले जाते, जो ये नहीं सोचते मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है. How would they manage the company when they can't manage their own selves? So this is how important EQ is. Let's go one step further. Suppose आपको जॉब मिल गया, आप कंपनी में घुस भी गए, right? You have a very good IQ. You have been made manager. You are एक बार awesome. मैंने लिंक भेजा, एक बार आप चेक करो ना. But you mobile keep पे. having fight with your employees. सब students. They don't want you in your team. You cannot get along with people because your EQ is not हो good. रहा है आपके इस पे? So believe me, मेरे इस पे नहीं हो रहा है. without EQ, मेरे nothing is mobile पे. possible. So let's learn this. The good thing is EQ can be learned. We can learn how to be emotionally intelligent and we can apply it in our lives. अम्मा और से निकल तो लाइट So पड़ा है. moving forward, what does emotional intelligence do? So sometimes people get into this debate. Okay, so is IQ not important? क्या EQ का मतलब है हम हमारे दिल की सुने? No. Normal Android. EQ means a proper integration of what is in our heart and what is in our head. When EQ and IQ come together, watching right now. Believe me, nobody can stop you from being successful. You can rule the world when you learn to rule yourself. Okay. So when we come to yourself, for you, less stress, because you know how to manage your emotions. आपके पास रिमोट कंट्रोल है अपने इमोशंस का. आप नर्वस हैं, आपको पता है कैसे मुझे खुद को मोटिवेट करना है. Better health. So there's a fact about emotions. You know what? Emotions are non-biodegradable. Emotions form neuropeptides in our brain. So they are stored in our brains. That is why it's so difficult to change habits. That is why we have such a hard time, because years of conditioning, years of so much of stuff. Imagine अगर हमने 10 दिन अपना घर साफ नहीं किया, कितनी धूल मिट्टी जमा हो जाती है. The same is with your emotional health. There is so much of garbage and these emotions are non-biodegradable. Till you make a conscious choice to improve it, nothing can happen. So obviously, once we learn emotional intelligence, हम stress में रहना बंद कर देते हैं. We know how to push ourselves. Better health. Success, of course, people want to work with such people. Who wouldn't want to work with such a person? Work-life balance. Because we know our boundaries. Family. So family members के साथ वो नहीं होता. I don't understand you and you don't understand me. Because with emotional intelligence, not only do we take care of our own emotions, we take care of our loved ones as well. Okay? Team, you are a team person. People love having you on board. Okay? Leaders, जब आपको लोग पसंद करते हैं, you are a people's person. Obviously, they listen to you. Because they know that this person is trustworthy. And organization, of course, high EQ staff will be of high performance and bringing success to the organization. One very good example of emotional intelligence is army people. So now army gives one of the most rigorous trainings and we have seen army people. Yes, ma'am. Talking to the development. So now battle. They know that their team is even, maybe if it's losing in a war, there are people out there with gun on their head and see their confidence. Why? Because they're fine. They are taught to manage their emotions. One of the nicest examples of EQ. And don't we feel awed by them? यार कैसे कर लेते हैं यार? मतलब यहाँ एक इंटरव्यू में डर लगता है. But these people, I mean, there are fire shots, there's gun, there's enemies out there, and they have that smile, they have that zest of life. That is because of EQ. Okay, so going further, what is emotional intelligence? So emotional intelligence is the ability to recognize your emotions. Half the time तो हम क्या करते हैं? How are you feeling? हाँ मस्त हूँ. जिंदगी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है. हमने सोचा भी नहीं. We did not even think about it. So the first thing is we need to recognize our emotions. We need to understand what is that telling us. कई बार ऐसा होता है हम बहुत टाइम तक अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, राइट? And suddenly there are times we have that outburst of anger.
and we don't know the reason because we've Yeah, never I am the invested host. time in our Like मैंने host emotions. ID से We वो don't किया know. हुआ है. She told me to be as the This host. is where emotional intelligence comes into play. Okay. So going Okay. further, let's do हाँ. so right. How are you feeling at this exact moment? हाँ मैं And हाँ I please, became the not host. fine, not good. Go for actual emotions. So there's a very nice line. If you want, please pen down this line. We soft skill trainers are taught this. If you can name it, you can tame it. So अगर आप अपने इमोशंस को नाम दे सकते हैं, आप उनको टेम कर सकते हैं क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना. So the first thing is awareness. So please write down what are you feeling right now at this moment. Happy, excited about the webinar, curious you'll be listening to something new, or okay, fine, another session, another webinar. So please, let's start tracking your emotions. So for emotional intelligence, see, जैसे मैंने बताया ये चीज सिखाई जा सकती है. Obviously, we need to practice, but there are certain models that can be taught. There are certain But things that presentation we नहीं आ रहा है as ना रे. trainers train our trainees in. And for that, we have this one She's model of sharing a emotional presentation वो भी दिख ही नहीं intelligence रहा है. that is a very, very popular model of Daniel नहीं Goleman. मेरे को भी नहीं दिख रहा है. So मोबाइल पे नहीं दिख रहा. Daniel Goleman वो थे जिन्होंने actually सबसे पहले बात की about EI, हाँ about the मतलब लैपटॉप में मेरे importance of सामने तो दिख emotional ही रहा है. intelligence. और इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है. The first is self-awareness. The second is self-management. The third is social awareness. And the fourth is बट relationship मोबाइल पे नहीं management. दिख रहा है. Now, the first two are the ones where we'll start from. And I'll be focusing mostly on self-awareness and self-management. So EI is a long journey. It takes time. सालों की मेहनत लगाई है इसमें ट्रेनर्स ने. And the point is, you people have so many habits for so many years. We can't just change it like that. But we can determine today itself to start doing something about it. Right? So let's begin with the first one, self-awareness. I'll try to cover all the 4 topics, but definitely I'll be stressing on the first 2, that is self-awareness and self-management. So in the first one, self-awareness, know your emotions. Okay. So I believe in doing lot many activities with my students because I believe that we learn the most with experience. So the next exercise is one that's very close to my heart, which my students also love, and I hope that. So this is kind of herein I'm asking you to think about it. Generally, I ask my participants to draw something. Okay. So Sharu ma'am, can I just disturb you for a second? yes. Can you just stop sharing and reshare your presentation again? Because the presentation is not visible to the students, it seems. Yeah, Okay. just reshare it, no? Yeah. So have they missed the entire one? No, starting में आ रहा था probably. Okay. I'll reshow. It's saying looks no host available at this moment. Ma'am, Please share the screen. no, just refresh na your page. Okay. Yes, ma'am. Yes. Have you received it? Yes. Okay. मैम वही एक बार रिफ्रेश करने बोल दिया मैंने. हमें आवाज आ रही है, मुझे So is प्रेजेंटेशन it नहीं दिख रहा visible था. now? यस यस. राइट.
participants. Is it visible now? Yes, ma'am, it is visible now. Yes. Hello? Yes, Charul, ma'am, visible है. Yes, Charul ma'am, it is visible. Hello? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Now, yes, ma'am. Now it is visible in the this as well. Yes. Please continue, ma'am. And sorry for the disturbance. Is it visible now? Okay. Your screen is visible. Okay, so I was talking about this activity, self-awareness activity. This is one of my personal favorites, and my students also love this. So what we do in this is Yes, sir. So I I'm in the ask them in to the imagine any webinar. object that they think reflects their personality. Okay, सर so चैट का ऑप्शन there का is कुछ a इशू हो logic गया behind सर, this. मतलब वो शेड्यूलिंग जब All करना of था ना us, तब mostly प्रॉब्लम मिस आउट girls, हो गया and we एक्चुअली, have all the girls. So बिकॉज all आरती the ने मेरे को girls बताया are नहीं ऐसे selfie शेड्यूल experts. करते हैं हम जस्ट फॉर सबको चैट. पता है आरती ने बोला कैसे एनेबल हो अचीव जाएगा सेल्फी लेनी, ऑटोमेटिकली, किस बट एंगल से बैकएंड टीम हमारा ने से चेहरा अच्छा आपको लगेगा, वो कहाँ से चैट का हमारे हमारा चेहरे पे गलती है, अच्छी मैंने लाइट एनेबल आएगी, नहीं किया है, कौन दैट इज सी वाई स्टूडेंट्स आर प्रोफाइल नॉट एबल अच्छी टू है, डू कौन दैट. सा फीचर अच्छा है. एंड हाँ सर, बाकी बट बीच में भी कैन वी ड्रॉ प्रेजेंटेशन एन में दिख रहा था इंटरनल इन द सेल्फी? मोबाइल टू द अगर हम स्टूडेंट. सोचें कि हम तो वो अंदर बस से अभी कैसे रिजॉल्व लगते किया हैं, मैंने so कि can we do रिफ्रेश that? करके वापस So the शेयर करने point बोला is मैम को, that स्पीकर outer को. appearance we are well मैम aware. यूट्यूब यूट्यूब Let's का मैम go सर उनको ही करना inwards. पड़ेगा. मैंने Let's डेवलपमेंट टीम को see पूछा, how देवर we लाइक look दे विल ओनली from हैव टू डू इट. inner मुझे view. सिर्फ प्रोसेस बता दिया And था, because तो मैंने वही सुरभि हमने मैम कभी को भी मैसेज कर एक्सपीरियंस दिया नहीं था. किया तो है, मैम so वाज to लाइक make यू it डू easy इट. मैंने I बोला मैम asked इतना them मेरे to को नॉलेज imagine नहीं any है, और object डेवलपमेंट टीम that कुछ करेगा reflects नहीं their हमारा. ये ओनली personality हैव टू डू इट अगर आपका and ऐसा then हुआ है और write आपका down यूट्यूब का अकाउंट है. similarities between तो शी वाज लाइक the ठीक है. chosen object and their personality. And इसमें भी बहुत अलग-अलग नहीं आंसर्स सर, आते ये हैं. भी ना Like स्केड्यूल for हो चुका है ना, example, ये people वाला may अभी पूरा choose ये the वाला इनको same चैट thing, नहीं मिलेगा. but ओनली they'll have स्टूडेंट्स a विल एबल टू different सी द reason for that. वेबिनार, Like, बस टीवी जैसा हो let जाएगा. me give you an चैट वाला example. ऑप्शन एक Some जैसा हो. student might say that I am like flowing water. So when he says like flowing water, सब मैं वो he wants to say that I keep कर तो moving सकते हैं continuously. सर. I keep progressing in life. And this is self-awareness. That person is aware about his or her quality. Another person might say that, I am like a water in a यस, jug. तो मैं And तो I सोच रही take हूँ shape of एक तो any आधा घंटा लेट ही vessel स्टार्ट I'm किया सर, kept क्योंकि in. चारुल मैम द This स्पीकर will नॉट एबल tell टू me as a recruiter or लॉग as इन. a तो पूरा आधा trainer that घंटा this 11:30 person से is 12 very o'clock ऐसे ही चला adaptable, गया. ऐसे ही लेट right? ही आधा घंटा So स्टार्ट किया. तो आई let's वाज take थिंकिंग अभी a जस्ट couple लेट of मी, क्योंकि seconds. और वापस Please चारुल think उनको of 2 बार any डिस्टर्ब कर चुके object, हैं, बिकॉज अभी any प्रेजेंटेशन object सिर्फ that मोबाइल में ही reflects आ your रहा है. अब personality. मैं वापस It करूंगी तो can be बहुत बोर हो जाएगा. anything. And तो then आई फील please लेट put इट a why जस्ट to it. बी अभी के लिए. Why? Why एंड do वो you चैट think वाला you ऑप्शन resemble मैं this खुद भी मुझे personality? समझना पड़ेगा कि It कैसे can एनेबल be करना anything. पड़ेगा. आप सोच सकते हो आरती ने आप बस समझाया नहीं पेड़ था की मुझे कि तरह चैट you कैसे know पूछना है. you love helping people, so trees give us shelter, हाँ and you also love हाँ हाँ helping हाँ. people. Or maybe you might say you're like the sun, you're like the rising sun. You हाँ are सर, उनको always समझा तो self दिया था, motivated. उन्होंने बोला था. Or you can say you are like a clock, you are very punctual. So just think of something and write it down in your diaries. हम्म. So I would have loved to hear your suggestions Right. or whatever you are thinking about, but Right maybe sir. So later उससे वो on you एड्रेस can बुक में share it with स्टिल your अंडर वो teachers and all, and एडजस्ट नहीं just think चलेगा about सर. it. एड्रेस बुक में यू हैव टू गो मैन्युअली. ईमेल आईडी से ही हो जाएगा प्रॉब्लली. So I hope you have thought about it. In case you haven't, ओके. or abhi kuch dimag mein nahi aa raha, it's okay. Do it later on. So this is one of the most tough exercises, one of the most fun ones, but at the same time the most tough ones. I have even seen in corporates people take the longest to finish this one exercise because they say, "Ma'am, subject का पूछ लो, subject का सब पता है, खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, इतने साल हो गए सोचा ही नहीं है." आपने सर पे बहुत प्रेशर डाल दिया, बहुत सोचना पड़ रहा है. Okay, but this has amazing impact. Like, let me share a case study. This is a real incident that happened with हाँ me. मैम चैट So वाला ऑप्शन मिस आउट I हो गया was है. teaching शेड्यूलिंग के about टाइम पे इट soft सीम्स आई हैड टू skills and enable some chat self-awareness option. इसके in लिए a चैट का ऑप्शन design नहीं आ रहा है. college. And there एंड was जो this one प्रेजेंटेशन student में हाँ वो मैम वो एक who ये वाली गलती हो seemed to रही be है. very सॉरी. happy doing design, एंड okay, learning design. And I happened to give them this रिकॉर्डिंग exercise सब मैम मैं wherein कर रही the हूँ. topic was they had to draw हाँ their emotions.
they had to draw एंड what अभी they चैट were वाला जो feeling मोबाइल में नहीं आ right रहा था then तो वो and मैंने there. वो अभी आ रहा है मैम। And this girl drew a weighing हाँ scale. अभी उसने मैंने एक जस्ट चेक तराजू किया तो आ बनाया रहा और है। उसमें तराजू में एक साइड उसका हार्ट था और एक साइड उसका ब्रेन। ओके, एंड उसकी बैक स्टोरी ये थी कि शी वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट देन फर्स्ट अटेम्प्ट में शी डिड नॉट गेट थ्रू। हर पेरेंट्स कन्विंस्ड हर, व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट अ ईयर, यू नो बहुत लंबा प्रोसेस है, अच्छे डिजाइन कॉलेज में मिल रहा है, निफ्ट में मिल रहा है, don't waste your time, go ahead. And she thought, yeah, I love design also, let's go ahead. So the weighing scale, actually what she did in her life was her brain ruled over her heart. She chose design over what she actually desired, which was medicine. But then she said, ma'am, while drawing, every time I would draw that taraju, हर टाइम मेरे दिल का पलड़ा भर लो। बोलती है मैम मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बन नहीं रहा, हर बार मेरा हाँ दिल मैम नीचे आ रहा है और उस वंस दिल इट में गेट्स मैंने ओवर आई विल स्टेथोस्कोप डू इट बना। अगेन। एंड मैं कर दूसरी दूंगी साइड एक उसने बार ब्रेन बना रखा था जिसमें उसने साइड में ब्रश रखा हुआ था एंड वो हर बार ऊपर। एंड आफ्टर डूइंग इट 4-5 नहीं मैम नहीं times आ रहा है, she नहीं said नहीं ma'am मुझे लगा maybe आ रहा now है, नहीं I'm मैंने शेड्यूलिंग realizing पे एनेबल ही नहीं that किया what I thought चैट का। was a मैंने जस्ट बात conscious किया तो call केवल एक was एपिसोड ही not वैल्यूएबल actually करना रहता है, प्रॉब्ली conscious. आई मिस्ड आउट I ऑन दैट। तो मेरे suppressed को my लगा डायरेक्टली emotions आता at है that time प्रॉब्ली, बट आई हैव टू and टेक इट अब वो न्यू suppress नहीं तो हुआ। कर दूंगी उसके मैं। बाद after talking to her, I counseled her parents. They ठीक है मैम, agreed. She dropped a year, and today she's doing medicine, and she's very, very happy now. So please do this exercise. Draw, and you know, seeing is believing. हम जो देखते हैं हमें उस अब पर मैम अभी यकीन हो वेबिनार जाता पार्टिसिपेंट है। था Like 363। if you have seen the movie Drishyam, जिन्होंने या नहीं देखी है लाइव प्लीज वाचिंग देखना। The राइट। power of seeing. So Ajay Devgan paints certain यस मैम, scenes in यस front of यस आई people, विल जस्ट and टेक उन अ scenes से वो फोटो उनको ऑफ इट। यकीन दिलवा देता है कि उनकी डन जिंदगी में मैम, ऐसा हो। And let's see with ourselves, we don't get impacted by something that we listen to. बट मैं आप लोगों को मूवी दिखा दूं, आप इम्पैक्ट होंगे नहीं होंगे? हम मूवीज से बहुत इम्पैक्ट होते हैं बिकॉज हमारी जो विजुअल मेमोरी है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत ज्यादा विजुअल मेमोरी पे रिलाई करते हैं। So this is a जाता beautiful visualization exercise. Please do it. शायद 1 आपको o'clock। कुछ और पता चलेगा अपने बारे में, पता चलेगा what you feel about your emotions. Just think about maybe drawing your emotions, maybe drawing your personality, हाँ internal self. Maybe think about तो वो drawing your एड्रेस वाला नहीं story. होगा Where were फिर, you in ईमेल life? आईडी उनको Where डायरेक्टली have कॉपी you पेस्ट करना come? पड़ेगा, Where नहीं you तो want हर to एक go? सिंगल And ईमेल you'll आईडी get a दे हैव new टू बी insight. हैव टू टेकन। Okay, moving forward. तो So वो मैं समझा दूंगी। हमारा माइंड ना, जैसे मैंने कहा अभी हमें बहुत सारे माइंड अभी चर्निंग नहीं करनी सर, है, वी अभी नीड टू मैं पूरा ब्रेनस्टॉर्म। रिकॉर्डिंग हो रहा है स्क्रीन का, सो आई कांट डू लेट्स एनीथिंग ऑन स्टार्ट द डूइंग स्क्रीन। दैट राइट नाउ। हम कैसा फील करते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, हाउ डू वी फील? बिकॉज द फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू बिकम या अवेयर मैंने अबाउट प्लगइन व्हाट कल काइंड शेयर ऑफ अ कर दिया था पर्सन वी सुप्रीम आर। को। So the first situation, when you get up in the morning, so how do you get नथिंग up है in the सर, morning? जिसके We पास भी say प्लगइन होगा that दे your कैन डू द morning रिकॉर्डिंग, mood बट सुनी मैम ने बोला था actually मेरे को करने, reflects the kind of बोला मेरे को life करके you दे have. वो रहता So हम जब मॉर्निंग में उठते हैं क्या एटीट्यूड होता है हमारा? आज है। फिर एक गूगल और से कुछ दिन, लिंक ही भेजना पड़ेगा जैसे फिर, तैसे शी ये दिन भी हैव निकल टू जाएगा ओपन इट और वी समवेयर। वेक अप विद पर्पस। यस, यू या नो गूगल आई ड्राइव हैव टू राइट अकम्प्लिश राइट। दिस, मुझे जिंदगी में ये करना है। और वी वेक अप विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, lovely life. You know, there are people who don't wake up the next day, and I have woken यस up today. I am so thankful for this blessing called नहीं life. नहीं नहीं। How do we, you know, wake up? That's very important, and this is a kind of wake up call. So if you don't wake up very happy and all, please, we need to do something about it. Okay, coming to the second वर्चुअल one, क्या बात हुई you थी get सर, the वर्चुअल news that the सेमिनार में? exams have been preponed. हाँ सर, वो क्या यूजुअली चलेगा हैव टू आपके डू लिए? इट, हम नहीं कर पाएंगे। दे क्या कैन सोचेंगे चेंज आप? द बैकग्राउंड, अरे वो उनको यार, स्टडी करके कुछ करना पढ़ाई पड़ेगा। नहीं की है, स्ट्रेस हो ग्रीन जाएंगे। स्क्रीन तो लगाया हुआ है, एग्जाम्स पहले हो यूजुअली गए, हैव टू डू ये इट। कोई मतलब वो है हम क्या? नहीं कभी करेंगे। भी कुछ भी हो जाता है। यहाँ पे एक्साइटेड होंगे, वाओ, so that means, या you know, I'll be हमारे free with जूम में है सर, exams. जूम में यू Maybe I कैन can चेंज द start my बैकग्राउंड। यस, internship. Maybe I can do हमारे one इसके लिए। additional certification. What is it? आपके इमोशंस हैं, आपको ट्रैक करना है। So, you know, as a trainer, I can help you become तो मैं aware about पूछती हूँ, मेरे को this. आइडिया नहीं है, मैं But डेवलपमेंट you टीम को need to पूछती do हूँ this कि इफ दे नो एनी exercise. सॉफ्टवेयर यू Because कैन जस्ट आपके रिकमेंड इट टू इमोशंस हैं। विशाल सर। See, आपके अंदर चल रहा है ये सब। मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन कोई और हमारे अंदर झांक नहीं सकता। वो सिर्फ आप कर सकते हैं। So please start becoming aware ठीक है when you're या stuck in traffic. क्या सोचते ओ हैं?
how is our mind हाँ सर, thinking? उनके साथ एक डेमो Are we करना है ना thinking मुझे, in a कुछ और negative वो करना है क्या? aspect? और 4 बजे ठीक तो है करना ही है, एक बार यार, उन्होंने ये तो बोला ऐसे 15 ही मिनट है में ऑफिस में अगली यार, बजे। इंडिया में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हाँ जी ट्रैफिक की। यार आज फिर टाइम ओ, खराब हो गया यार। या इट्स ओके, ठीक everybody है, is in a hurry like I am. ओके। It's okay, we'll reach when your friend doesn't return your call. ये तो ऐसी है यार, ये तो कॉल रिटर्न ही नहीं करती। ये तो नालायक है। मैं ही हूँ जो रिलेशनशिप चला रही हूँ, मैं ही हूँ जिसको फिक्र है, इसको फिक्र नहीं। और मे बी वी थिंक शी मस्ट बी बिजी यार, उसने नया नया जॉब स्टार्ट किया है, उसकी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जब टाइम मिलेगा कॉल कर लेगी। बिजी है बट दैट डजंट मीन वो मुझे भूल गई है। वी आर गुड फ्रेंड्स, शी विल। तो क्या चलता है व्हेन यू फेल अ टेस्ट? हाउ डू यू टेक फेलियर? सो यू थिंक जिंदगी खत्म है, और यू थिंक एक टेस्ट ही तो था, कोई बात नहीं, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई सी व्हाट डिडंट गो रॉन्ग, व्हाट डिडंट गो राइट, एंड नेक्स्ट टाइम आई कम बैक विद अ बैंग। क्या है? हाउ डू यू थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स? सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। जब भी बैठे हैं, लेट्स आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड। बिकॉज सी, one thing that I strongly feel is, be it me, be it any other motivational person you follow, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बातचीत होती है वो संदीप महेश्वरी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग किसी और को फॉलो करते हैं, एंड पीपल फॉलो एन नंबर ऑफ पीपल, राइट? कितना भी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो, वो आपको 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बहुत अच्छा है, मे बी बहुत अच्छी इन्फ्लुएंस है, 2 महीने के लिए मोटिवेट कर दे। अल्टीमेटली you need to keep yourself motivated. Because see, the most important thing is you can hear me for 1 hour. You can hear any motivational trainer for say 2 hours, 3 hours. But then ultimately, दिन भर 24/7 किसको सुनते हो? Your own self, your own mind. So you think to somebody, you listen to somebody for 1 hour. 1 hour पॉजिटिव सुना एंड 24/7 तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चल रहा है। इम्पैक्ट किसका? हैबिट किसकी बनी? नेगेटिव। एंड जनरली ये होता है, सी दिस इज अ विशियस साइकिल हमारे माइंड में। इवन राइट नाउ व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, इवन इफ यू आर लिसनिंग टू मी, देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन इन योर, देयर वुड बी अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन इन योर माइंड। हर चीज पे ये काम का नहीं लगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। So now your mind is constantly speaking to you. Make it say positive things, make it speak positive things, because जब तक हम हमारे दोस्त नहीं बनेंगे, nothing will happen. बाहर से हम कम हारते हैं, we lose here because we have our biggest enemy sitting inside our own heads, right? So आज से, if अगर आप इतना भी समझ पाते हैं कि आज से यार खुद से दोस्ती करनी, let me make my mind my friend, not my enemy, we'll be sorted. I would think that मैंने आज कुछ achieve कर लिया. So moving forward, this was the first part, self awareness. हमें पता चलने लग गया है कि हम हमारे इमोशंस को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, हम अवेयर हैं हम कैसा फील कर रहे हैं। मुझे पता है मेरा मूड चिड़चिड़ा है, मुझे पता है मैं गुस्से में हूँ। हाफ ऑफ द टाइम ना कई बार ये भी होता है, पीपल आर लाइक मूड बहुत खराब है, क्यों खराब है, पता नहीं क्या हो गया। सो आपको जब डिजीज ही नहीं पता, आप उसका इलाज कैसे कराओगे? जब आपको पता ही नहीं आपके सिस्टम में चल क्या रहा है, कैसे ठीक करोगे, कैसे चेंज करोगे? सो द फर्स्ट पॉइंट इज बिकम अवेयर व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन वी गो टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ रेगुलेशन। सो अब हमें पता चल गया कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। मे बी मुझे पता चल गया कि यार मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। Now I find a technique that helps me manage my anger. Okay, now we move to the second step. This is where initiative becomes very important. This is where taking a step becomes very important. क्या मैं उस बारे में कुछ कर रहा हूँ? Now again, because आप लोग placements के लिए बैठने वाले हैं, so I'm trying to give you certain tips about the placements. So what happens is generally हम लोग EI देखने के लिए उससे question पूछते हैं, आपकी strength और weakness क्या है?
और मैंने देखा बहुत लोग आजकल ये समझते हैं, हम गूगल भी कर लेते हैं, हमारे टीचर्स भी हमें बता देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो हम आंसर्स रट लेते हैं। आपको पता चल गया आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है। अब मैंने किसी से पूछा और उसने मुझे बोला हाँ ठीक है मेरी स्ट्रेंथ ये है और मेरी वीकनेस है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुड, आप में सेल्फ अवेयरनेस है, आप अवेयर हैं अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप अगर अवेयर हैं कि आपको गुस्सा आता है तो क्या आप इस बारे में कुछ कर रहे हैं। अब नाउ अ पर्सन हु टेल्स मी नो मैम आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, उसका EQ कम है, उसे पता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं कर। दैट मीन्स दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू टेक इनिशिएटिव। और वही एक बंदा मुझे बोलता है हाँ मैम मुझे गुस्सा आता है, मैं इसके लिए मेडिटेशन ट्राई, मैं इसके लिए कामनेस टेक्निक्स ट्राई कर रही हूँ, और आई ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक, आई ट्राई टू मैनेज माई एंगर, आई काउंट टू 10 वॉट एवर। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता वो क्या कर रहा है, मैटर ये करता है वो कुछ कर रहा है, right? So self-management is very important. Now the first point in this, controlling your emotions. Controlling और managing your emotions. यहाँ पे मैं कहीं भी suppression की बात नहीं कर, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं मैम बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन मन तो कर रहा था कि बस चीख चिल्ला दूं लेकिन नहीं किया, आपने सप्रेस किया, आपने उसे मैनेज नहीं किया। और जब आप सप्रेस करेंगे ना, ठीक है कुछ टाइम आपका काम चल जाएगा, बट देन हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं फिज बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, राइट, और कई बार वो फेस पे भी आ सकती है। दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी सप्रेस इमोशंस। सो नो वी कैन सप्रेस देम फॉर सम टाइम बट फॉर लॉन्ग वी वोंट बी एबल टू सस्टेन। मे बी किसी दिन आउटबर्स्ट हो जाएगा भयंकर वाला, बहुत टाइम तक दबा लिया और एक दिन सडन ऐसा गुस्सा आ गया कि बस सबसे झगड़ा हो। सो दैट इज नॉट मैनेज। Now in this there are three things that I want to tell you. So the first thing is हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी सेल्फ इमेज को लेके, राइट। हम लोग सोचते हैं अरे यार मैं तो बहुत पॉजिटिव बन रही हूँ, लोग मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, मैंने अगर गुस्सा कर दिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज कि प्लीज अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव फील नहीं होता, ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत हैप्पी हुए वो सैडनेस एक्सपीरियंस नहीं करते। देयर इज अ range of emotions, there's a range through all this. What smart people do is, like what a positive person will do is, वो sadness feel करेगा, वो sadness को address करेगा, but that person will not let that sadness control his or her mood. उसको पता होता है कि मैं इसको कैसे मैनेज करना है, वो ये नहीं सोचता अरे यार मैं तो हैप्पी रहने वालों में से हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने सप्रेस किया इमोशन, वो क्या करेगा, वो उस इमोशन को एड्रेस करेगा। ओके आई एम फीलिंग लो, इट्स ओके टू फील नॉट ओके, इट्स ओके टू फील लो, इट्स ओके टू फील एंगर, इट्स ओके टू फील एवरी इमोशन। सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू एड्रेस इज डोंट थिंक यार मैं तो बहुत गंदे इंसान हूं अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तो ऐसी इंसान हूं मुझे जेलसी फील हो रही है। हम खुद ना बहुत जल्दी खुद को जज करना शुरू कर देते हैं, दूसरे तो बाद में जज करेंगे, वी स्टार्ट जजिंग आवरसेल्व्स। डोंट डू दैट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन ही रहते हैं यार। सुपर हीरोज जो होते हैं ना उन्हें भी फील होती है फीलिंग्स, दे डोंट जस्ट लेट दैट स्टॉप देम और दे डोंट जस्ट लेट दैट कंट्रोल देम। एक पॉजिटिव इंसान अपनी सैडनेस को कंट्रोल नहीं करने दे, वो एड्रेस करेगा उसे और वो सोचेगा, टेक्निक बिल्ड करेगा, ओके आई एम फीलिंग अनहैप्पी, व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, चलो यार म्यूजिक सुनते हैं, मूड अपलिफ्ट हो जाए। सो दे नो हाउ टू मैनेज देयर इमोशंस। ओके, द अदर थिंग इज मोटिवेटिंग योरसेल्फ इन ऑल सिचुएशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ मैनेजमेंट में अगर आप साइड में देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे देयर आर 3 सिग्नल्स, एक्ट, स्टॉप एंड थिंक। ओके, तो जिन लोगों का EQ और EI लो होता है, जनरली हाउ डू दे बिहेव, दे रिएक्ट। ओके, किसी ने कुछ कह दिया वो भी उसको कुछ कह देंगे, फिर वो रुकेंगे और फिर वो सोचेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं यार मैं उस पर चीखना नहीं चाहता था, यार मैं मिसबिहेव नहीं करना चाहता था, हो गया,
और फिर जिंदगी भर गिल्ट में रहते हैं, या उनकी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाती हैं क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं। पर जो स्मार्ट लोग होते हैं, जिनका ईआई हाई होता है, वो जानते हैं आई शुड नॉट लेट द सिचुएशन कंट्रोल, आई कैन कंट्रोल माई सिचुएशन। एंड वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। वो सबसे पहले रुकते हैं, थिंक करते हैं एंड फिर एक्ट। और जब वो सोच के एक्ट करते हैं, दे आर नेवर सॉरी अबाउट देयर एक्शंस। सो लेट्स नॉट रिएक्ट, लेट्स रिस्पॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट। जब हम सेल्फ मैनेजमेंट सीख गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को मोटिवेटेड रखना। सी, कोई आएगा 2 दिन के लिए मोटिवेट कर जाएगा, 10 दिन के लिए, अल्टीमेटली इट्स आवर एंड आवर बैटल। We need to know how to keep ourselves going, how to keep pressing forward without losing enthusiasm. So वो कैसे आएगा? Now, when we talk about motivation, there are two kinds of motivation, extrinsic and intrinsic. So ना extrinsic होता है, जॉब मिल जाए, मनी मिल जाए, ग्रेड्स अच्छे आ जाए, तारीफ होगी, मैं सबसे पॉपुलर स्टूडेंट होंगी कॉलेज की, प्रेज, लाइमलाइट में आ जाऊंगी, टीचर्स तारीफ करेंगे, किसको तारीफ अच्छी नहीं, करियर बहुत अच्छा होगा, पेरेंट्स बोलेंगे वाओ शी इज अमेजिंग। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तब तक काम करेगा, मुझे 5 साल हो गए टॉप करते हुए, बोर हो गई हूँ मैं टॉप करके, ये भी टाइम सही नहीं चल रहा, मेरा जॉब इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल मेरे पास नहीं है, मेरा हैप्पीनेस का रिमोट और लोगों के पास है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना कितना आयरॉनिकल है, कोई और हमारा रिमोट कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है, कोई हमें खुशी दे देता है, कोई हमें दुख महसूस करा देता है, कोई हमें गुस्सा दिला देता है। दैट मीन्स हमारा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। इट्स लाइक यू नो, टीवी आपका चल रहा है, रिमोट कंट्रोल आपका है और ऑपरेट कोई और कर रहा है। आप नफरत करते हैं उस चैनल से और वो चैनल आप जिंदगी भर देख रहे हैं, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? और वही इंट्रिंसिक मोटिवेशन है आपके पास, आपका रिमोट कंट्रोल है, आपका टीवी है, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या स्विच है। So for intrinsic motivation, again, please note down this thing. लाइफ में कुछ भी करना है ना, ask yourself why. लोग how पे बहुत फोकस करते हैं, why भूल जाते हैं। अरे how कैसे अगर फिगर आउट कर लोगे, जब आपका why स्ट्रांग होगा ना, आप कैसे अपने आप फिगर आउट करोगे। और आपका why स्ट्रांग नहीं होगा ना, जब हमारा ऐसे होता है मोटिवेशन, हाँ ठीक है पैसे के लिए काम करना है, वो ड्राइव नहीं है। और जब आपका मोटिवेशन ये होगा, नो आई वांट टू चेंज लाइव्स, आई वांट टू यूज द गिफ्ट्स दैट आई हैव बीन गिवन, अंदर से आएगा। सो प्लीज अपना पर्पस, अपना व्हाई, इन दिस अगेन आई विल शेयर वन एग्जांपल। सो देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन जो स्टेज पे बोलने से बहुत डरता था, बहुत स्टेज फियर था, द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, एंड एक्चुअली जिसे स्टेज फोबिया काइंड्स था। मैंने बहुत कोशिश की एंड ही कुड नॉट मैनेज दैट फियर ऑफ हिज। अभी कुछ टाइम पहले उसकी जो सिस्टर थी, उन्होंने डाउरी की वजह से, उनके इन लॉज ने उनको बहुत टॉर्चर किया एंड उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। दिस गाय हैज बिकम अ सेंसेशन ऑन ट्विटर। दिस गाय इज वर्किंग फॉर दिस कॉज एंड मैंने उसकी जर्नी देखी है। क्या बदला यहाँ पे? पर्पस। उसे पता था कि मैं अगर आज खड़ा नहीं हुआ, मैंने अगर आज ये चीज एड्रेस नहीं की, तो जो मेरी बहन के साथ हुआ है वो और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। और जब उसका पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग था, नो फियर कुड स्टॉप हिम। आज की तारीख में जो बंदा एक स्टेज पे नहीं बोलता था, वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू टॉक अबाउट इट एंड ही इज टॉकिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म because he wants to raise awareness about this, because he wants to do something for his sister and every girl out there. So purpose, अपना why, आपका why जितना strong होगा ना, अपने आप how और what figure out कर लोगे। और अगर why strong नहीं है, कुछ नहीं होगा। So for motivation, find out your why. Make your why so strong कि अगर extrinsic situations आपके लिए काम नहीं भी करें, तो भी आपको पता है आप ये चीज करोगे because you love it, because ये आपका purpose है, ये आपकी calling है। Okay, so moving forward, हमने हमारे बारे में सुन लिया,
हमने 2 सेगमेंट्स की बात कर ली है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट. नाउ वी टॉक्ड अबाउट others because see it is about managing others as well. So इसमें अब क्या हम अवेयर हैं औरों के इमोशंस के बारे में? तो इसमें भी कुछ सिचुएशंस लेते हैं. द फर्स्ट सिचुएशन इज अ बैचमेट whom you don't like has failed. अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा? तो अगर आप गौर करें, पहले वाली स्लाइड में हमारे लिए था, हमारे इमोशंस के लिए था. हम अगर एक टेस्ट फेल कर देते हैं तो हम क्या फील करते हैं, राइट? अब यही सिचुएशन किसी और पे हो रही है, हमारा बैचमेट फेल हो, क्या सोचेंगे हम? क्या हम ये सोचेंगे इसके साथ तो यही होना था, बंक ही तो करता है ये, क्लास में कभी आता ही नहीं है, कुछ काम करता ही नहीं है, हमेशा ये तो हर चीज मुझसे तो कॉपी करती थी, यही होना? या हम ये सोचेंगे लेट मी हेल्प हर, शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, या मे बी उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी यार, कैन आई हेल्प हर, मैं इसकी मदद कर सकती हूँ नोट्स देके, मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए. हाउ डू वी थिंक? नेक्स्ट, अ फैमिली मेंबर शाउटेड ऑन, ये तो ऐसे ही है, मे बी एनीबडी, पापा, पापा को तो हमेशा गुस्सा ही आता है, ही डजंट अंडरस्टैंड माई थिंग, मुझे तो समझता ही नहीं है कोई. हम ये सोचते हैं, या हम ये सोचते हैं यार मे बी कोई तो रीजन होगा, डाटा होगा, या हो सकता है मूड खराब हो इनका, या हो सकता है बाहर से आए हैं बहुत स्ट्रेस्ड हैं. हाउ डू वी थिंक? अगेन सी, वी आर अवेयर अबाउट आवर इमोशंस, आर वी अवेयर अबाउट अदर्स इमोशंस एज वेल? क्या हम एम्पैथेटिक हैं? क्या हम दूसरों को सुन रहे हैं? सुनना इज नॉट जस्ट लिसनिंग, सुनना है उनकी वाइब समझना, उनके इमोशन समझना. हो सकता है कल को कोई आपको बहुत गुस्से में कुछ बोल रहा है, हम क्या देखते हैं? हम गुस्सा देखते हैं, हम गुस्से के पीछे की वजह नहीं देख सकते, देखते. हो सकता है उस गुस्से के पीछे, जहां माँ का गुस्सा है, टाइम पे क्यों नहीं आते, फोन क्यों नहीं उठाते, वजह क्या है? लव, कंसर्न फॉर अस, राइट? हम कई बार फ्रेंड्स का तो ले लेते हैं ना, फ्रेंड्स जब हमें कहते हैं अरे यार क्या है हमेशा लेट आते हो, हम सोचते हैं अरे यार बहुत टाइम से वेट कर रहा था, हम उन्हें वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं. डू वी डू इट फॉर विद अदर्स एज वेल? क्या हम करते हैं? योर फ्रेंड डिडंट विश यू ऑन योर बर्थडे, दोस्त ने विश नहीं किया, अब हम क्या सोचेंगे? हमारा थॉट पैटर्न क्या है? सी, all these questions I'm trying to explain to you what your thought pattern is for your own self and for others, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो उस बारे में कुछ करेंगे. See friends, when we know what is troubling us, that is when we find a cure for that trouble. हमें पता ही नहीं है हम क्यों दुखी हैं, हमें पता ही नहीं है हमें जिंदगी इतनी मायूस क्यों लगती है, तो हम क्या करेंगे? So your friend didn't wish you on your birthday, what do you think? भूल गया होगा, she is very busy, मैंने तो उसके बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी थ्रो की थी, एंड सी कितना कन्वीनियंटली वो भूल गई. या हो सकता है आई माइट थिंक यार थोड़ा सा और रुक जाती हूँ, शायद हो सकता है कहीं बिजी हो सकता है कहीं स्टक हो, शी विल कॉल मी व्हेन शी हैज टाइम. हाउ डू वी थिंक? अनदर, योर प्रोफेसर इज लेट टू क्लास, क्या सोचते हैं हम? अच्छा है, अच्छा यार आधा घंटा ही बचा है, बस आधा घंटा सुनना पड़ेगा और अटेंडेंस भी मिल जाएगी. और वी थिंक वी आर मिसिंग आउट ऑन लर्निंग, फिर कुछ मिस कर दें. यार हो सकता है मैम को याद नहीं रहा हो कि उनका सेशन है, मैं जाके याद दिला दूं, क्या हम वो इनिशिएटिव लेंगे? क्या हम जाके मैम को बोलेंगे कि मैम आपका सेशन है, आप शायद भूल गए, वी आर ऑल वेटिंग, प्लीज आप आइए? क्या करेंगे? हाउ वुड वी फील? क्योंकि हम जो फील करेंगे हम वैसे ही रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे. Our actions are driven by our emotions. So एक्शन तभी लेंगे जब उसके लिए एक अप्रोप्रिएट इमोशन हो, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो हम बैठे रहेंगे, हम तो क्लास में आए ना यार, मैम नहीं आई इट्स ओके, हम क्लास में आए हमारा काम हो गया, दैट इज इट. एंड ये सब हमारी पर्सनालिटी बता रहा है, ये सब हमारे बारे में बता रहा है, हम कितने इन्वॉल्व हैं, हम कितने एंगेज्ड हैं, हम कितने इनिशिएटिव्स लेते हैं, या हम वी आर जस्ट गोइंग थ्रू लाइफ. लास्ट, योर बेस्ट फ्रेंड हैज गॉट हर ड्रीम जॉब. अब हम क्या सोचेंगे? यार मेरा जॉब तो अभी तक लगा नहीं, यार मेरा क्या होगा, उसका तो हो गया, मेरा क्या होगा? क्या वी थिंक आई एम हैप्पी फॉर हर,
इनफैक्ट लेट मी टेक सर्टेन टिप्स फ्रॉम हर यार, हाउ डिड शी क्रैक दिस। उससे सीखती हूँ ना, उससे जेलस नहीं होती यार, उससे सीखती हूँ, आगे बढ़ती हूँ उससे सीख। हाउ डू वी थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, that determines what kind of a personality we have. That determines how people will also respond to us. Okay, so moving further on. Now हमने बात कर लिया है कुछ हद तक, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अभी इन सच अ शॉर्ट सेशन आई कैनॉट टीच यू अ लॉट ऑफ स्किल्स अबाउट एआई, बट अगर हमें थोड़ी चीजें समझ आनी स्टार्ट भी हो गई, वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम टुडे। Okay, we can start becoming aware about ourselves and others' emotions. So first चीज मैंने बोली थी, सी खुद को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया, अपने circumstances को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया, right? That is very important. So coming to that topic, this is one of my favorite models. I hope it's visible clearly on the screen. अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे. There are 3 concentric circles. The first circle is control circle. The second is the circle of influence, and the third circle is the circle of control, no control or influence. Okay, ये जो मॉडल है ये सबसे पॉपुलर मॉडल है सेल्फ मैनेजमेंट का. 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स करके एक बुक है ऑफ वेरी सक्सेस. वहां पे उन लोगों ने सर्वे किया है सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट्स होती हैं, और वो स्टडी करके उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं 7 हाईली इफेक्टिव हैबिट्स. ये उस बुक से लिया गया मॉडल है, और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सो देयर आर 2 स्टूडेंट्स, राइट. एक स्टूडेंट है जिसका पंक्चुअलिटी रेशियो इज 90%, एंड दूसरी स्टूडेंट है जिसका पंक्चुअलिटी रेशियो इज से 99%. नाउ टीचर इज वेरी हैप्पी विद देम, और वो एक दिन दोनों को बुलाती है क्लास में सबके सामने, और वो कहती है कि आप प्लीज अपना टाइम मैनेजमेंट सबके साथ शेयर करिए. बोथ ऑफ यू मैनेज योर टाइम सो इफेक्टिव. सो जो फर्स्ट गर्ल है वो कहती है कि मैम मैं ना, मेरा घर कॉलेज से आधे घंटे दूर है, सो मैं आधे घंटे पहले अपने घर से निकल जाती हूँ, और मैं एक दिन पहले ही सब डिसाइड कर लेती हूँ मेरे को कौन सा बैग लगा लेती हूँ, मुझे क्या आउटफिट पहनना है, सब तैयार होता है, मेरे नोट्स तैयार होते हैं, एंड आई जस्ट पिक इट अप एंड आई लीव. जिस दिन मुझे ट्रैफिक मिल जाता है मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, अदरवाइज आई मेक इट ऑन टाइम. नाउ मैम आस्क्ड द अदर पर्सन जिसका 99% पंक्चुअलिटी रेशियो है, हाउ डू यू मैनेज इट? शी सेज मैम हम लोग ना सेम लोकेलिटी में रहते हैं, सो मेरा घर भी आधे घंटे दूर है. लाइक शी सेड मैं भी अपना आउटफिट नोट सब तैयार कर लेती हूँ, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज ऑल पैक्ड, बट मैं अपने घर से आधे घंटे ही नहीं 45 मिनट्स पहले निकल जाती हूँ. मैं 15 मिनट स्पेयर रखती हूँ फॉर ट्रैफिक, ताकि जिस दिन ट्रैफिक मिले उस दिन भी मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ. अब इन दोनों की स्ट्रैटेजी में फर्क क्या है? So one person is keeping spare 15 minutes for controlling. समझाने की कोशिश कर रही हूँ. दूसरी लड़की ने क्या बोला कि मैम जिस दिन ट्रैफिक मिलता है उस दिन मैं लेट हो जाती हूँ. क्या हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ट्रैफिक हमारे हाथ में है? क्या हम डिसाइड कर सकते हैं हम कितना ट्रैफिक फेस करेंगे? वी कैन नॉट डिसाइड. ये थर्ड सर्कल में आता है नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस. ये वो चीज है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? लेकिन हमारा हमारे टाइम पे कंट्रोल है, राइट? अब दूसरी गर्ल क्या बोलती है कि मैं लेट हो जाती हूँ जिस दिन ट्रैफिक मिलता है, बिकॉज ट्रैफिक तो मैं मैनेज नहीं कर सकती, राइट? ट्रैफिक पे मेरा कंट्रोल नहीं है. बट दूसरी गर्ल कहती है मैम मेरा मेरे टाइम पे तो कंट्रोल है, मैं 15 मिनट पहले निकल जाती हूँ, और 15 मिनट पहले निकल के और अपने टाइम को कंट्रोल करके जो सेंटर वाला सर्कल है मैं वो भी कंट्रोल कर लेती हूँ जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज ट्रैफिक. I make it on time. So see, what we do is हम मोस्टली लाइफ में नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के सर्कल में रहते हैं. इस चीज पे हमारा कंट्रोल नहीं है. यार घर की हालत ठीक नहीं है, देश सही नहीं चल रहा, पेंडेमिक है, हम उसी पे फोकस करते हैं. हम ये तो भूल ही जाते हैं कि कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो हम पेंडेमिक में ओके क्लास में नहीं जा सकते, हम ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं, हम किताबें पढ़ सकते हैं,
आर वी डूइंग ऑल दैट? सो जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो इस पे फोकस नहीं करते, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस जिन चीजों पे नहीं है, वो फोकस करते हैं किस चीज पे कंट्रोल है, और जिस चीज पे कंट्रोल है उसे कंट्रोल करके वो चीजें भी मैनेज कर पाते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं। और ऐसे लोग आप देखिए, जब आपका कंट्रोल का सर्कल बढ़ेगा, ऑफ कोर्स आपका इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ेगा। ऐसे लोग दुनिया जीत जाए, ऐसे लोग हाईली सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज वो जानते हैं हाउ टू मैनेज देमसेल्व्स। वो जानते हैं खुद को मैनेज करके वो बाहर की चीजों को भी कैसे हैंडल कर सकते हैं। और जो लोग नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के सर्कल में रहते हैं, आप देखिए जैसे जैसे उनका नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ता जाएगा, उनका इन्फ्लुएंस खत्म होता जाएगा। उन्हें लगेगा हमारी जिंदगी में कोई भी पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, बिकॉज हमारा फोकस ही वहां है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आप लोगों ने MS धोनी की मूवी देखी हो, तो उस मूवी में बहुत ब्यूटीफुली बताते हैं कि कैसे धोनी के पास पैसे नहीं होते, उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही होती है। दिस इज नो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, स्पॉन्सर नहीं होना, मनी नहीं हो, राइट? बट कंट्रोल में क्या था? धोनी ने अपने इंटरव्यू में कहा, मेरे पास हमेशा कंट्रोल में मेरा टैलेंट है, मेरे पास मेरी मेहनत कंट्रोल में थी, और ये चीजें कंट्रोल करके मैंने वो भी कंट्रोल कर लिया जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं था। सो मैंने अपनी मेहनत और अपना टैलेंट कंट्रोल किया, एंड व्हाट हैपेंड? दुनिया जीत ली। ही इज वन पर्सन हु हैज द हाईएस्ट EI। एक बहुत अच्छा उदाहरण है MS धोनी, एक अच्छे EI के। लोग उनको कूल कैप्टन कहते हैं, काम कैप्टन कहते हैं। किसी भी सिचुएशन में वो अपना टेम्पर लूज नहीं करते, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल में रखते हैं। ओके, so this is a very important model. I hope you can do this. And moving to the second one, कुछ strategies हैं इसके अलावा EQ boosting की. Let's talk about those. The first is, let's not ignore the feelings of others. ठीक है, दूसरों को भी सुन लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी फीलिंग्स तो इग्नोर करते ही करते हैं, हम दूसरों की फीलिंग्स भी इग्नोर करते हैं। लेट्स नॉट डू दैट। एंड हम सबने एक कोट सुना है, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू टोल्ड देम, दे विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। सुनो, किसी की फीलिंग्स सुनना इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। सो प्लीज उन्हें सुने, दैट इज हाउ यू फॉर्म अ बॉन्ड। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। सोचिए, जहां पे आपने रिएक्ट किया ना, आपने अपनी सारी पावर लूज कर दी। कई बार जिंदगी निकल जाती है, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं होती, बिकॉज पीपल डोंट फॉरगेट व्हाट यू हैव सेड टू देम एंड एंगर, और आप जिंदगी भर एक्सप्लेनेशन देते रह जाते हो। यार बहुत गुस्सा आ रहा था उससे, लेकिन उस गुस्से ने डैमेज कर दिया फॉर लाइफ टाइम। सो लेट्स नॉट डू दिस। एंड सी, ट्रस्ट नहीं करते लोग ऐसे लोगों को। यार क्या पता, ये तो बहुत मूडी है, ये तो अपने मूड स्विंग्स मैनेज नहीं कर पाती, क्या पता कहीं भी गुस्सा हो जाए, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी नर्वस हो जाए। तो लोग दूर भागते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना, यार इसको तो हर चीज में प्रॉब्लम है। सो थोड़े टाइम बाद पीपल डोंट वांट टू टॉक टू यू, they start running away from you. So let's not do that. Let's not give our power to anybody else. अपनी happiness, अपने emotions का remote control अपने पास रखते हैं, right? The third and the most important one, mindfulness. So generally क्या होता है, our mind is full of emotions. हजार चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, and most of the time negative ही चल रहा होता है, negative self talk. हम लोग experts हैं इसमें, हम सबके सब PhD हैं इसमें। ये तो नहीं होगा, ये तो मेरे बस का नहीं है। इंटरव्यूअर तो बाद में बोलेगा आप किसके लायक नहीं हो, हम खुद को 50 बार बोल चुके हैं हम किसी लायक नहीं। सो our mind is at every time full of emotions, and most of the time negative self talk and negative emotions. But mindfulness is a technique wherein we immerse ourselves in the now, in the moment. हम जहाँ हैं हम वहीं रहते हैं। So to practice mindfulness, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं। Like I tell my students whenever they go anywhere, मैं उनको बोलती हूँ अपने सारे सेंसेस यूज करो। जो देख रहे हो उसको बेहतर तरीके से देखो, जो सुन रहे हो उसको बेहतर तरीके से सुनो, जो स्मेल कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से स्मेल करो, जो टच कर रहे हो उसे महसूस करो। जब हम ये करते हैं, वी आर इन द नाउ, वी आर कंप्लीटली इंगेज्ड इन द प्रोसेस।
एंड सी इसका एक एग्जाम्पल है, हम जब सुनते हैं हम इतना नहीं सीखते, बट हम जब मूवीज देखते हैं हम बहुत सीखते हैं, बिकॉज हमारे दो सेंसेस इन्वॉल्व हैं। जब हम सुन रहे हैं या ऑडियो सुन रहे हैं, सिर्फ हमारा ऑडिटरी, हमारा हियरिंग काम कर रहा है, लेकिन जब हम देख रहे हैं हमारी सेंसेस, विजुअल सेंसेस भी इन्वॉल्व है। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा हम उस एक्सपीरियंस से डिराइव करते हैं और उतना ज्यादा वी स्टे इन द मोमेंट। ओके, खाना खा रहे हैं, कई लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज इसमें कराते हैं। आप लोगों ने, गर्ल्स को तो जनरली कुकिंग का शौक होता है, मास्टर शेफ, राइट? मास्टर शेफ में एक एक्टिविटी होती है विच इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ माइंडफुलनेस। उसमें वो क्या करते हैं, टेस्ट टेस्ट। हम ऐसे तो खाना खा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता खाना कैसा था क्या था, अरे भाई जाना है, काम पे जाना है, सेशन है, ये है वो है। एंड टेस्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, आप देखो तो वो आंखें बंद करके पूरा सेंटर्ड होते हैं उस एक्सपीरियंस में, वो उसको देखते हैं ध्यान से क्या है इसमें, वो उसकी ग्रेवी को टेस्ट करते हैं, वो उसको सैंपल करते हैं, अपने मुंह में घुलने देते हैं, हर इंग्रेडिएंट का पता लगाने Yes, की sir. कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं वो उस Yes, sir. एक्सपीरियंस में, वो उस एक्सपीरियंस में उसे सैवर कर रहे हैं। एंड समवेयर यू नो लाइफ इज लाइक दिस, हम लाइफ में चलते चले जा रहे हैं, तो हम मैं ना अभी लाइफ एक वेबिनार में बैठी लिव हूँ, कर रहे हैं, हम लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर तो रहे। सो अभी लेट्स ज्वाइन करना है क्या? मेरा एक्सपीरियंस, अभी जस्ट खत्म हो माइंडफुल जाएगा हो आधे जाते घंटे हैं, में। आज ऑब्जर्व करते हैं, मे बी अपने रूम में, प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व all your senses, सर मेरे को एक बार see मैसेज what you डाल have दोगे maybe क्या? never आपका आवाज ना observed, बहुत कट रहा है मेरी। listen, क्या साउंड सुनाई देती है आपके रूम में, स्मेल, हाँ, कैसी स्मेल है आपके रूम की, यस। अगर आपके बाहर गार्डन है तो क्या तो मड जस्ट की कॉपी स्मेल द आती है, यूआरएल। क्या टच क्या है, अगर सर मार्बल है आपके एड्रेस, रूम में, स्टोन है, वुड तो है, एड्रेस उसका वाला फील ना क्या है, कुछ तो अलग उसका इन्वॉल्व योर वो है, वेर यू हैव टू सेंसेस। मैन्युअली गो एंड ऐड अप और नेक्स्ट, साइन अप लेट गो एवरीवन, ऑफ तो ही वो आएगा। नेगेटिविटी। सो बेटर ऑप्शन See, विच the आई first फील and the इज foremost जस्ट problem कॉपी द is यूआरएल एंड हम पेस्ट कुछ इट भी इन अ नया व्हाट्सएप तब ग्रुप और सीखेंगे जब मास हम मेल खाली और होंगे। एनी समथिंग हम लाइक दैट। ग्लास में पानी तभी डाल सकते हैं जब ग्लास खाली यस, है। अगर ग्लास ऑलरेडी गंदे पानी से भरा हुआ है तो एंड क्या जो हम उसमें ज्वाइन वाला पानी डाल पैनलिस्ट को पाएंगे? जाएगा, ब्रॉडकास्ट वाला सो हम प्लेस को जाएगा, पार्टिसिपेंट को चीजें अगर जाएगा। लेट गो नहीं करेंगे, उसने मुझे हाँ ऐसा वही वाला, किया, हाँ वही वाला भेज मेरे देना। साथ तो 5 साल पहले ठीक है। ऐसी चीज हो गई। मेरा तो लास्ट इंटरव्यू बहुत बुरा गया, मेरा तो इसको लेके एक्सपीरियंस ही खराब। अगर हम वो करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ते, हम कभी भी खुद को रेगुलेट पॉजिटिवली नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज लेट गो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलर्न, दैट इज व्हेन यू कैन लर्न न्यू थिंग्स। हमें पता होना चाहिए क्या हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा, लेट्स रिमूव दैट। एंड फाइनली, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। आजकल क्या हो गया, हम दिन भर काम कर रहे हैं और हम कुछ अचीव नहीं कर रहे। there's severe lack of wisdom। हम उलझे हुए बहुत सारी चीजों में, हम 100 चीजों में इन्वॉल्व हैं। वो जैसे मैंने बताया ना, माइंडफुलनेस, अ माइंड इज फुल ऑफ इमोशंस। हम 1000 चीजें कर रहे हैं और हम कहीं पहुंच। चारुल मैम। कार्तिका मैम, लगता है किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गई है, मे बी रिफ्रेश करने से फिर से हाँ मुझे पार्टिसिपेंट्स लिस्ट पे तो दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रही है। नहीं, 2 मिनट वेट करिए मैम, मेरे ख्याल से आ जाए। या ठीक है।
Rukayya, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Ma'am, kindly call Charul Tata to see what जी is the problem. जी मैम, मैं वो कॉलिंग कर रही हूँ. Am I audible now? Okay. So I was talking about self-image. I think this question many people of you also must be having in mind that ma'am क्या करें? क्या करें for a positive self-image? क्या करें to boost our self-esteem? हम खुद से हार गए हैं, so how would we win the world, right? So in self-esteem, in self-image, there are 4 very important aspects. The first aspect is हम खुद को compare करना बंद करें. So the first and the foremost thing we do with ourselves is we compare. हम compare करते हैं. मैं इसके कंपैरिजन में कहाँ हूँ, मैं उसके कंपैरिजन में कहाँ हूँ. सी हम बहुत यूनिक हैं, हमारी जर्नीज बहुत अलग है. हो सकता है आपने 2 से स्टार्ट किया, 5 पे पहुंचे. हो सकता है किसी और ने 6 से स्टार्ट करके 7 पे पहुंचा है और आप 7 वाले से खुद को कंपेयर कर रहे हैं. इज दैट द राइट यार्डस्टिक? सो जो लोग ईआई में अच्छे होते हैं वो खुद को कंपेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है आई एम यूनिक एंड लाइक आई एम यूनिक सेपरेट कर द दीजिए. अदर पर्सन इज आल्सो वेरी हमको दे दीजिए. So when I हमको know लिस्ट it, बता I दीजिए. will not हमको compare या तो आप बोल myself दीजिए तो हम with उनको others WhatsApp or कर I दें. not तो compare आपसे कनेक्ट others करके with कर myself. देंगे. बस See, नाम हम सबकी different gifts हैं और हम सबके लिए scope है. Okay, so we all are unique. We all have our own gifts. Let's not compare with somebody else. Let's discover our own gifts. The second thing, हम flaws देखते हैं, right? हम हमेशा scarcity देखते हैं. हम ये देखते हैं, अरे मेरे पास तो फंड्स नहीं है, मुझे वो कोर्स करना था, मैं कैसे करूंगा? अरे मेरे पास तो जिंदगी में ये नहीं है. आप ये देखते हैं आपके लिए क्या चीजें काम कर रही हैं. डू यू फोकस ऑन अबंडेंस? जिन लोगों का ईआई बहुत अच्छा होता है वो ये सोचता है हमारे लिए क्या काम कर रहा है. So please start focusing on abundance. Start focusing on what's working. जब what's working पे फोकस करोगे वे फॉरवर्ड मिलेगा. जब ये सोचोगे what's not working, स्टॉप का बोर्ड दिखेगा. वो मॉडल जो मैंने सिखाया क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कंट्रोल कर सकता हूँ वो कंट्रोल कर लिया ना, तो जो हाथ के बाहर है वो अपने आप मैनेज हो जाएगा, राइट? द थर्ड थिंग एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं खुद को भी औरों को. सिस्टम में ये अच्छा नहीं है, उसके साथ ये अच्छा नहीं है, इसके साथ ये अच्छा नहीं है. तारीफ करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग. खुद को भी बिल्ड करो और दूसरे को भी बिल्ड करो. ठीक है? We'll like ourselves, we'll build ourselves, and other people will also like us. They'll say that I like being around this person. क्या पॉजिटिव बंदी है, इसकी तो वाइब से मजा आ जाता है. और वहीं यार ये तो मुझे, मैं जाऊंगी वैसी डिमोटिवेटेड हूँ, 10 कमियां और बता दी कि रहने दो, let it be, right? And now coming to the fourth one, the most important one. What am I doing about what I do? तो जिनका ईआई लो होता है ना, वो जिंदगी में कोई इनिशिएटिव नहीं लेते. वो सोचते हैं जिंदगी जैसी चल रही है, आज तक चल गई, आगे भी चल जाएगी. पेंडेमिक है, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं एक ही तो बंदी हूँ, मैं क्या कर लूंगी, मैं थोड़ी दुनिया बदल सकती हूँ. सी दुनिया वही बदलता है जो मानते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, जो मानते हैं उनके हाथ में पावर है.
सो इनिशिएटिव लेना शुरू करो. अगेन गोइंग बैक टू दैट इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, एंगर है तुम्हारा इशू, कोई बात नहीं, हम सब वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, हम सब कुछ चीजों पे वर्क कर रहे हैं. सो इट्स ओके इफ यू हैव एंगर, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? इनिशिएटिव ले रहे हो. आज ईआई की क्लास अटेंड की है, मैंने आपको बता दिया ईआई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कह दिया इमोशनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कुछ इनिशिएटिव लोगे? क्या जाके कुछ करोगे? क्या आज ये डिसाइड कर लोगे कि नहीं, you know, I have to make sure that I work on my self image. आज से वक्त स्टार्ट कर, मेरा वक्त स्टार्ट करोगे? Will you do that? So if you do that, believe me, you'll have a positive self image. So the first, no comparison. You are unique and the other person is also unique, and we are all different, and that's the beauty, because we all have different gifts. हम सब डिफरेंट चीजों के लिए बने हैं, एंड दैट इज व्हाई द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, इट हैज सो मेनी थिंग्स. सेकंड, फ्लॉ पे नहीं कॉन्सेंट्रेट करना है. अबंडेंस, व्हाट्स वर्किंग फॉर मी, हाउ कैन आई बिल्ड दैट अप. थर्ड, be appreciative, encourage yourself, be your biggest encourager, and be a friend to people. They love being around you. You'll be a people's person. And fourth, take initiative. शुरुआत तो करो. Start. The beginning is the toughest, but once you begin, everything falls into place. So please become aware about your emotions. All of us are lovely people, and all the emotions, there are no good, bad, worse, nice emotions. Emotions are emotions. Emotions are feelings. Don't suppress them, don't neglect them. Manage them. Address them. खुद के दोस्त बन जाओ यार. खुद से पूछो आज क्यों मायूस है तू. Give yourself that pep talk. और आज मायूस है तो क्या क्या करके मैं रेगुलेट कर सकता हूँ? क्या वर्क करेगा? कुछ के लिए म्यूजिक वर्क करेगा, कुछ के लिए दोस्त को कॉल करना out and make it work for you. We all can do it. That's all. Thank you. So over to you, Rukaya ma'am. Thank you so much, Charul ma'am. It was a very really wonderful session, and I'm sure कि हमारे सारे students को और in fact हमारे colleagues को सबको इससे बहुत benefits मिलेगा. And there are can we take some question and answers? There are some questions, if you allow us. Hello, Charul ma'am. Hello. Hello. Charul ma'am, you're not able to hear. Hello, Charul ma'am. Again, इनका voice वो हो गया लगता है मैम. Ma'am, are you able to hear us? I think we seem to Same starting issue the हो problem. गया है. हाँ. मैम कैन यू टाइप इन द क्वेश्चन इन दिस वेब पैनल. मेरे को एक बार क्वेश्चन बताओ ना मैम. रुकैया मैम, आई जस्ट टाइप इन या लेट मी नो इन चैट. वो बोल रही है. Okay, she's asking. या इफ एनीथिंग. There's a question from Dr. Ankita Pandey, ma'am. She's an assistant professor in Commerce Department. How do we respond to criticism? Student who want to ask question, please text me. Okay, so I hope I'm audible. The first question that I've received is, how do we respond to criticism? Okay. So Yeah. again, see, emotions. So first thing is the person, हम बात करते हैं constructive criticism की. हर टाइम क्रिटिसिज्म हमें तोड़ने के लिए नहीं होता. समटाइम्स क्रिटिसिज्म मेक्स अस अ बेटर पर्सन. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज आवर अप्रोच, राइट? जैसे नॉट ओनली क्रिटिसिज्म, एनीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ दैट्स नेगेटिव, हम फेल हो जाते हैं, फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, या हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं. सो वन थिंग इज हम रिएक्ट करते हैं, हाउ डे या यू नो, हम सोचते हैं इसको खुद को क्या आता है, इसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया. और वहीं दूसरी तरफ हम रिस्पॉन्ड करते हैं. वी स्टॉप एंड वी थिंक अबाउट,
Now, when we think about it, see, we are taking back our part. We think it through. We see the situation, we ask ourselves. Maybe for example, किसी ने हमें कहा हमारा काम अच्छा नहीं है, हमें हमारे प्रोफेसर ने कह दिया योर वर्क इज नॉट गुड. द फर्स्ट थिंग इज डिनायल. हमने दूसरे के इमोशंस को समझा ही नहीं. हमने बोला मैम तो ऐसे ही करती है, मैम का तो वो फेवरेट है, उसको फेवर किया होगा, मेरे लिए तो ऐसा ही होगा. द फर्स्ट थिंग इज दैट people with high EI, what will they do is वो बिना किसी जजमेंट के उसको देखेंगे. they'll go back, then read their copy. फिर मैम ने जो कमेंट बोला है क्या उसमें कोई सच्चाई है? let me read it once. then if I feel that ma'am was correct, I'll improvise. if I feel ma'am was not correct, I'll go and have a discussion. I'll not debate it. I'll go and have a discussion with the open mind. So I would say for criticism, first understand the cause and try to understand the cause with an open mind, right? Is it helping me? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? And then अगर मुझे वो नहीं समझ आ रहा, why the person has said that, go and have a discussion with this. As a recruiter, I'm telling you, I come out of the room and sometimes I see people saying, टिक्स होगा यार ये तो ना कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ये होता है. And there are certain people, I get a mail from them and they tell me that ma'am, we did not get selected. That is fine. But please, can you provide us with the feedback? These are the peoples with a high EI. And sometimes I receive back their mails saying, ma'am, thank you for the review. We got through the second interview. और कुछ होते हैं जो ये सोचते हैं सिस्टम गलत है, इंसान गलत है. क्या होता है? कंटिन्यूस रिजेक्शंस, खुद पे काम नहीं किया. शायद ये आपको हेल्प करा दे खुद पे काम. और फिर आपके पास चॉइस है ना, अगर आपको लगता है वो अनजस्ट था क्रिटिसिज्म, गो एंड टॉक टू द पर्सन. और पता है किसी को सुन के सोच के रिस्पॉन्ड करोगे ना, दूसरा भी इज्जत करे. शायद आप आके मुझे बोलोगे मैम मुझे आपका ये कमेंट समझ नहीं आया, मैंने अपनी कॉपी वापस से स्टडी की, प्लीज एक्सप्लेन. आई विल एक्सप्लेन. अगर मुझसे गलती हुई है शायद आई चेक माई सेल्फ. बट इफ यू इमीडिएटली डिनाई, नो नो मैम ऐसा नहीं है, मैं तो चेक कर चुका, I wouldn't deal with it so nicely. I think arrogance hai. He doesn't want to learn. She doesn't want to learn. Okay. So next question is, even if we are positive souls, how to make negative people positive towards us? So the first and the foremost thing, हम दूसरों की responsibility नहीं ले सकते. पता है हम सबसे बड़ी मिस्टेक लाइफ में ना ये करते हैं, हम सोचते हैं कि हम दूसरों को चेंज कर देंगे. आज सोचो, इससे पहला क्वेश्चन था क्रिटिसिज्म. हमें कोई 4 चीजें बोल देता है, हमें टाइम लगता है चेंज करने में. हमारे पेरेंट्स जिनको हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो भी हमें कहता है ना ये 3 चीजें तेरे में खराब है, तू इम्प्रूव कर ले. बहुत मुश्किल होता है, खुद पे काम करना बहुत कठिन है. तो जब हम खुद जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हम खुद पे काम नहीं कर पा रहे, हाउ डू वी एक्सपेक्ट कि हम दूसरों को चेंज कर लेंगे? और ये तो वही बात हुई, मैं आपसे कह रही हूँ आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, आप चाह रहे हो दूसरे का भी मेरे हाथ में हो जाए. सी, फ्री विल हर जगह है. मैं एज अ ट्रेनर आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकती हूँ. आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, जैसे हमारे हाथ में है, दूसरे का दूसरे के हाथ में. बट हाँ, अगेन यहाँ पे मैं दूसरा एड्रेस करना चाहूंगी, हमारी संगत, हमारी कंपनी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू अस. We become the kind of people we stay with. We stay with positive people, positive emotions ज़्यादा feel होते हैं. We stay with very negative people, we start being very negative. अपने emotions manage करना बहुत important है. See, negative positive होगा या नहीं, I don't know. But अगर आप positive होते हुए किसी के साथ रह के negative हो गए, that means आपकी पार अपनी लाइफ में काम नहीं कर रही है, आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे को दे दिया. या आप इतना इंश्योर कर सकते हैं किसी और की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं करे, आपकी पॉजिटिविटी को हार्म. You know how to manage in every situation, you know how to manage with every person because you know take control of your own emotions. किसी ने नेगेटिव बोल दिया, आप मूड शिफ्ट करना. And eventually, see, the only thing in this is you can positively influence people. And वो भी बहुत perseverance चाहिए उसके लिए. पता है नेगेटिव लोगों को एक बार आपने अच्छे से बोला ना, वो बोलेंगे अरे यार एक बार तो कोई भी बोल ले, ठीक है. हम इमीडिएटली ट्रस्ट नहीं करते.
we take our time to build trust. आपको continuously उनके साथ perseverance practice करनी पड़ेगी. Then eventually you might be able to positively motivate them. अगर 10 बार उनकी बात सुन के आपने 11वीं बार रिएक्ट कर दिया, वो बोलेंगे ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहता था, इससे तो खुद नहीं मैनेज हो रहा, ये मुझे क्या सिखाएगा, राइट? So be a good example for every negative person. Be such a good example that आपके words उस तक अगर नहीं भी पहुंचे, आपकी vibe उस तक पहुंच जाए. यार कुछ बात तो है इस बंदे में या बंदी में, मैं इसे पसंद करूं नहीं करूं, but the moment she enters, there are positive things. She can impact her environment. Okay. So the next is, what should we usually do after receiving challenging feedback? So I think काफी हद तक same ही है criticism वाला. See, feedback is very important. हम lucky हैं. मैं as a trainer request करती हूँ मेरे student से, तुम्हें पसंद आया, तुम्हें ना पसंद आया, please बताओ. इनफैक्ट मेरे ट्रेनर्स कई बार हंसते हैं कि ये पागल है क्या, ये भी बोल रही है ना पसंद है तो बताओ. बिकॉज जब मुझे पता चलेगा कि उन्हें क्या पसंद नहीं आया, तो मुझे पता चलेगा मेरी एक्शन लिस्ट क्या होनी चाहिए, मुझे किस चीज पे काम करना है. तो जो चैलेंजिंग फीडबैक मिला है, खोलो उसे. यू आर वेरी लकी आपको फीडबैक मिला है. जॉट डाउन योर पॉइंट्स. ओके, मुझे बोला गया मेरे को इंटरव्यू में मैं क्वेरी सॉल्व नहीं कर पाया, मुझे क्वेरीज पे काम करना है. मुझे बोला गया मेरी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी नहीं है, मुझे सब्जेक्ट नॉलेज पे काम करना है. या मे बी मुझे बोला गया कि मेरी पर्सनालिटी, मैं प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं आया, तो मुझे आज से अपनी ग्रूमिंग पे काम करना है. आपके लिए आपके रिक्रूटर ने या जिसने आपको चैलेंजिंग फीडबैक दिया, उसने आपका काम कर दिया, उसने आपको एक्शन लिस्ट दे दी. से थैंक्स टू द पर्सन and start taking initiative, start working. See, the foremost guidance I would like to give is start working. And working वो नहीं जो हम सोचते हैं हम काम कर रहे हैं, कमियां निकालना, यार उसने गलत किया होगा, यार ऐसा हो रहा है, हम हाफ ऑफ द टाइम यही करते हैं. वो छोड़ो, एक्चुअल काम करना शुरू करो, खुद पे काम करना शुरू करो. छोड़ दो दूसरा क्या कर रहा है, छोड़ दो पेंडेमिक है, खुद पे काम करना शुरू कर दो. Be it pandemic, be it anything else in the life, अच्छे लोगों की जरूरत हमेशा होती है. जॉब्स होंगी, चीजें होंगी, सिचुएशंस टफ हो सकती है, and that means you need to work more on yourself, because today's situation demand people who are very strong. So work. So I think that's all from the questions. रुकैया मैम, स्टूडेंट्स, बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चैट विंडो डिसेबल है, बट इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू आवर रिसोर्स पर्सन, तो प्लीज टेक्स्ट मी, और अदरवाइज आई थिंक एवरीवन सीम्स टू बी हैप्पी. Charul ma'am, everyone seems to be happy. Can you just share your email ID? So if they want to ask you anything personally, they will ask you on your email ID. ma'am, we'll put it in the chat. मैम रुकैया मैम, यू वांट टू टाइप इन, आपको टाइप करना है? आप टाइप कर दीजिए मैम. What like to give the email ID and just to give the please, like the students are happy with the with the session. चारुल मैम सुन नहीं पा रही. हाँ. रुकैया मैम शेयर कर दिया है उन्होंने. या यू वांट टू कॉपी पेस्ट इट समवेयर? On our group only. ठीक है मैम, आप वो कर दीजिए. That madam you can do on your end.
आप अपनी तरफ से कर दीजिएगा बच्चों को, अगर कोई क्वेरी आती है। मुझे लगता है चारुल मैम शायद सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग को, आवाज नहीं जा रही है उनकी। वी विल टाइप अ मैसेज, हम लोग ने टेक्स्ट मैसेज टाइप करते थे थैंक यू के लिए। हाँ, बच्चों को भी धन्यवाद कर दीजिए। I mean, it was a quite big number who was listening to everything. तो कहिए मैम, आप फोन करिए चारुल मैम को और आप बोलेंगे उनको जब थैंक यू, तो बच्चे भी सुनेंगे। We all can hear you. So thank you all. It was a wonderful experience being here. Thank you, Principal Ma'am. Thank you, Rukaya Ma'am, for giving me this wonderful opportunity to interact with such wonderful people out there. And thank you, Apeksha Ma'am, for coordinating with all of us. And all the very best to all the students. I'm always there to help. I have shared my email ID. Please feel free to ask questions. And the most important thing, see, faith it till you make it. Fear and faith can't coexist. So have faith in yourself, have faith in your abilities, and you will be able to move mountains. I always tell my students to live by this guidance only. Faith it till you make it. So वो पिक कर ले फोन। हेलो मैम, am I audible to you? अरे हाँ यार, पता नहीं उसमें क्या हो रहा था। मतलब मैंने तेरे को बोला था, मेरे टेक्निकल ग्लिच तो बाय गॉड। ठीक है मैम, अब आप ऑडिबल मैडम को बता दें कि वो स्पीकर पे। हाँ, आप ऑडिबल हैं, आपने जो भी मैसेज हमें कन्वे किया वो हमें मिल गया है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ श्री गुरु नानक डिग्री कॉलेज एंड ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग आपके बहुत हैप्पी हैं कि आपने बहुत अच्छा सेशन दिया एंड इंगेजिंग अस, तो इतना अच्छे से आपने इतना अच्छे ड्यूरेशन में हमें इतने अच्छे से इंगेज किया। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से थोड़ा बहुत इशू रहा, बट स्टिल बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत वंडरफुल। एंड स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बात मेरे लिए एक बहुत इमेंस प्लेजर था कि मैं अपनी बचपन की फ्रेंड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड, शी इज माई फ्रेंड, और मैं उसको आज एज एन प्लेटफॉर्म पे सुन पा रही हूँ एंड शी इज मोटिवेटिंग मी ऑल्सो। मतलब एज इट कभी भी हम लोग सीरियस नहीं हुए हैं, लेकिन बट सीरियसली उसने मुझे भी इस सेशन के साथ ग्रैब किया। एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इतने अच्छे नंबर पे हमारे पार्टिसिपेंट्स। Still 391 people are there online. Participants. ऑनलाइन। Actually, that is a wonderful Sorry, number. it is 402 now. बढ़ गए 402. पहले 401 था। So 402 people have been motivated today. और जैसा कि हम चारुल मैडम को देख रहे हैं और आप रुकैया मैम को भी देखते हैं, their personality is like which can influence anyone. तो बेटे, आप सभी बच्चे जो हमें सुन पा रहे हैं, मैं आप सबको बहुत आशीर्वाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि मैडम आपको इनवाइट करें और हमारे जो आपके आगे आने वाले जूनियर्स हैं, आज से 5 साल 6 साल बाद आप लोग उस लेवल पे हो कि आप उनको मोटिवेट करें एंड यू रिमेम्बर दिस डे that yes, you were motivated someday by someone, and now you are capable enough to guide the futures. So that is in itself is a big achievement. Or matlab I have heard so many speakers, but the way Charul madam spoke, that was wonderful. And believe me, this cannot come unless and until we speak from inside. So she is motivated, that's why she can motivate. So bete, this is something very important, that you people need to be positive. And very many thanks to Rukaya ma'am also to bring to make us know and hear such a wonderful person. और शायद मैम ऐसे ही आपके जो अच्छे टीचर्स हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए अच्छे लोग हैं, वो और अच्छे लोगों को जोड़ते जाते हैं, and that positivity keeps on increasing. And I see new years to come. I see my college to be number one in this whole country, and even I claim it to be of a standard of some international level. So with all my I see blessings from Babaji.
so that a day definitely comes where we are number one. And even if we are Definitely. not, even if we are not able to sometimes uh, at least we can strive for the excellence, whatever in our capacity we can do. So all the students, I request you that it is who is going to make the institution actually. It is the teachers, it is the students who make the institution. So it is your quality, it is my teachers who will build up the institution. An institution is not made up of the management, it is not only made up of principal, it is not only alone made up of the students also. It is all our team which is working together. So I believe that everybody is having the blessings of Shri Guru Nanak Dev Ji, and I seek again his blessings, the blessings of Almighty, and I wish you all the very best for your future course of action. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Students, I will share her email ID with you, and you can ask any question, any inquiry if you want to ask. You can ask her personally. Okay, I will share her email ID with you. Thank you so much for being there and be patient and listening to the session. Thank you, Rukaya, ma'am. Ma'am, I'll disconnect, right? Okay. Okay, ma'am. Take care.